امیر باپ غریب باپ رابرٹ کیوساکی کی کہانی اپنی زبانی اس کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی تمام ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ڈیڈ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے؟ میرے باپ نے شام کا اخبار ہاتھ سے رکھا۔ بیٹے، آپ امیر بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جمی کی والدہ نئی کیٹلاگ میں گھوم رہی تھی اور وہ ہفتے کے اختتام پر اپنے ساحلی کاٹیج میں جا رہے تھے۔ 3 دوست ان کے ہمراہ تھے، مگر مجھے اور مائک کو انہوں نے مدعو نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے کہ ہم بہت غریب تھے۔ کیا انہوں نے اسی طرح کہا؟ میرے باپ نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل اسی طرح، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میرے باپ نے سر کو ہلایا، اینک کو آنکھوں پر جمایا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ میں کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا۔ یہ 1956 کی سال تھا اور میری عمر اس وقت 9 برس تھی۔ شومی تقدیر سے میں اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جہاں زیادہ تر امراء کے بچے زائر تعلیم تھے۔ جس قصبے میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں زیادہ تر گنے کی کاشت ہوتی۔ کھیتوں کے مالکان اور دوسرے بااثر لوگ جیسے ڈاکٹر، تاجر اور بینکرز اپنے بچوں کو زیادہ تر اسی اسکول میں بھیجتے۔ یہاں اول سے لے کر چھٹی تک جماعتیں تھیں۔ بعد میں ان بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ چونکہ ہمارا گھر گلی کے دوسری طرف واقع تھا جہاں یہ اسکول قائم تھے، لہٰذا مجھے بھی اس اسکول میں داخل کیا گیا۔ اگر ہم دوسری جگہ رہ رہے ہوتے تو مجھے بھی شاید کسی ایسے اسکول میں بھیجا جاتا جہاں میرے جیسے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے، اور چھٹے گریڈ کے بعد میں پبلک انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول میں چلا جاتا کیونکہ ان کے اور میرے لیے کوئی پرائیویٹ اسکول نہ ہوتا۔ میرے باپ نے آخر کار اخبار کو نیچے رکھا۔ وہ سوچ میں غرق تھا۔ اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، میرے بچے، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ میں کیسے روپیہ کماؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے بیٹے، وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا، یا یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ ایک شراکت بنتی ہے۔ عنوان ہے شراکت بنتی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے قریبی دوست مائک کو بتلایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس اسکول میں اور مائک ہی غریب تھے۔ مائک بھی میری طرح حادثاتی طور پر اس اسکول میں داخل ہوا تھا۔ یہ اسکول اس ڈسٹرکٹ میں موجود تھا جہاں یہ رہتا تھا، چنانچہ اسے امیر بچوں کے اسکول میں داخلہ مل گیا۔ ہم غریب تو تھے، مگر جب دوسرے لڑکوں کے نئے نکور بیس بال دستانوں اور نئی سائیکلوں پر ہماری نگاہ پڑتی، ہم خود کو غریب تصور کرتے۔ ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا، پینا، رہنا اور لباس مہیا کرتے، اور بس۔ میرا باپ کہا کرتا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کام کرو۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، مگر 9 سالہ بچے کو کام کا فقدان تھا۔
روپیہ کمانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مائک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، مگر کیا تم میرے پارٹنر بننا چاہتے ہو؟ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس ہفتے کی صبح ہم دونوں حصے دار بن گئے۔ صبح دیر تک ہم سوچتے رہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے۔ اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے جو جمی کے ساحلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور خنکی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی، مگر اس کا فائدہ تھا، کیونکہ اس طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ آخر کار دوپہر تک اچانک ہمارے ذہنوں پر بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال پیدا ہوا۔ مائک نے یہ خیال سائنس کی ایک کتاب سے لیا تھا۔ خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس پارٹنرشپ کے پاس اب کرنے کو کچھ تھا۔ اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسایوں کے تقریباً تمام گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خالی ٹوتھ پیسٹوں کی ٹیوبیں ہمارے لیے رکھ چھوڑیں۔ بہت سے ہمسائے اس عجیب درخواست پر حیران ہوئے، مگر مسکرا کر انہوں نے حامی بھر لی۔ کچھ نے پوچھا بھی کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کو کیا کریں گے، جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بتلا سکتے کیونکہ یہ ایک کاروباری راز تھا۔ میری والدہ میرے اس طرز عمل سے خاصی پریشان تھی۔ واشنگ مشین کے قریب ہم ایک جگہ پہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے۔ وہاں ایک گتے کے ڈبے میں ہم انہیں جمع کرتے رہے اور روز بروز یہ ڈھیر بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اس کے ہمسایوں کی استعمال شدہ پچکی ہوئی تڑی مڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے۔ جو کرنا ہے جلد کرو، وگرنہ میں اس ڈھیر کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ صرف تھوڑے دن اور صبر کرے، جب ہمارے پاس خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتلایا کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری ساری ہمسائیگی کے چند گھروں میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوبیں خالی ہو جائیں تاکہ وہ بھی ہمیں مل جائیں۔ میری والدہ نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی، اسے تھوڑا آگے سرکا دیا گیا۔ ہم پر سخت دباؤ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو بے دخلی کا خطرہ تھا، اور وہ بھی میری والدہ کی طرف سے۔ مائک کا فرض تھا کہ وہ ہمسایوں کو تاکید کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹیوبیں خالی کریں۔ وہ ان سے کہتا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں دانت زیادہ مرتبہ صاف کرنے چاہیے۔ میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کیا۔ ایک دن میرا باپ ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں پیداوار کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا۔ جب وہ اور اس کا دوست قریب آئے، انہوں نے دیکھا ان دنوں ٹوتھ پیسٹیں نے دیکھا کہ ایک برتن دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا تھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کے خولوں کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ٹوتھ پیسٹیں پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں ہوتی تھی، انہیں سیسے سے بنایا جاتا۔ چنانچہ جب اوپر کا رنگ جلا تو انہیں ایک چھوٹے آئینی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا، حتیٰ کہ وہ پگھل کر مائع کی شکل اختیار کر گئی، اور اپنی والدہ کے چمٹوں کی مدد سے ہم اس مائع دھات کو ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبوں میں انڈیل رہے تھے۔ دودھ کے ڈبوں کو پلاسٹر آف پیرس سے بھرا گیا۔
सफ़ेद रंग का पाउडर जो हर तरफ फैला हुआ था, इसलिए फैला कि पानी में मिलाने से पहले ही जल्दी में मेरे हाथ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का थैला जमीन पर गिरकर फट गया और पाउडर की एक तह फर्श पर जम गई। दूध के डब्बे प्लास्टर ऑफ पेरिस में ढलाई के लिए बाहर की तह या दीवार मुहैया करते थे। मेरे वालिद और इसके दोस्त ने बगौर हमें काम करते हुए देखा। हम नहायत एहतियात से गर्म माया को प्लास्टर ऑफ पेरिस की मुस्तसों में ढाल रहे थे, जिन्हें दूध के खाली डब्बों में रखा गया था। एहतियात से, मेरे वालिद ने कहा। मैंने ऊपर देखे बगैर सर को हिलाया। आखिरकार उंडेलने का ये अमल पाए तकमील तक पहुंच गया। मैंने लोहे के बर्तन को जमीन पर रखा और बाप की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने महतात लहजे में पूछा। हम वही कर रहे हैं जिसकी आपने मुझे नसीहत की। हम अमीर बनना चाहते हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुरा कर सर हिलाते हुए इकरार किया। हाँ, माइक ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इकरार किया, हम हिस्सेदार हैं। और प्लास्टिक के इन सांचों में क्या है? मेरे बाप ने पूछा। डैड, गौर से देखो, आपको जल्द पता चल जाएगा। मैंने एक छोटे से हथौड़े से सांचे को हल्की फुल्की ज़रब लगाई। वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मैंने बड़ी एहतियात से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाया और एक शीशे का सिक्का इसमें से निकलकर बाहर आ गया। ओह मेरे खुदा, तुम शीशे से चांदी के सिक्के बना रहे हो? ये सच है कि हम शीशे से चांदी के सिक्के बना रहे हैं, माइक ने कहा, क्योंकि आप ही ने हमें रुपया बनाने को कहा था। मेरे बाप का दोस्त एक तरफ घूमकर जोर से हंसा। मेरा बाप ज़ेरे लब मुस्कुराया और सर को झटका दिया। हमारे सामने आग रोशन थी। इर्द गिर्द खाली टूथपेस्टों का ढेर था। हमने सर से पांव तक सफेद रंग के प्लास्टर से अटे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। इसने हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर के सामने की दहलीज पर इसके हमरा बैठने को कहा। मुस्कुराते हुए इसने हमें बतलाया कि खोटे सिक्के बनाने का मफहूम क्या था। हमारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आपका कहना है कि हमने जो किया वो गैर कानूनी था? माइक ने लरजती हुई आवाज में पूछा। इन्हें जाने दो, मेरे बाप के दोस्त ने कहा। शायद वो एक कुदरती इस्तेदाद की नशोनुमा कर रहे हैं। मेरे बाप ने इसे घूरा। हाँ, ये गैर कानूनी है, मेरे बाप ने आहिस्तगी से कहा। अलबत्ता तुम लड़कों ने एक गैर मामूली जहानत का मुजाहरा किया है और एक अछूते ख्याल को अमली जामा पहनाया है। मुझे तुम पर फख्र है। मैं और माइक मायूसी की आलम में तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे और वहां से काठ कबाड़ हटाने में मसरूफ हो गए। पहले ही दिन का कारोबार शुरू हुआ और उसी दिन ठप हो गया। पाउडर को वहां से हटाते हुए मैं माइक से मुखातिब हुआ। मेरे ख्याल में जिमी और इसके दोस्तों का कहना ठीक है, हम गरीब हैं। जब मैंने ये बात कही, इस वक्त मेरा बाप बाहर निकल रहा था। लड़कों, इसने कहा, तुम इस वक्त गरीब होगे जब तुम कोशिश तर्क कर दोगे। सबसे अहम बात यह है कि तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर फख्र है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि कोशिश जारी रखो, हार ना मानना। मैं और माइक खामोशी से खड़े रहे। ये अल्फाज दिल को राहत बख्शने वाले जरूर थे, मगर सवाल ये था कि हम करें तो क्या करें। तो फिर क्या वजह है कि डैड तुम अमीर नहीं हो? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल का उस्ताद बनने को तरजीह दी। उस्ताद आमतौर पर अमीर बनने का नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ा कर खुश होते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, मगर मुझे अफसोस है कि पैसे बनाने के गुर से मैं ना आशना हूँ। माइक और मैं दोबारा सफाई में मसरूफ हो गए। मैं जानता हूँ, मेरे वालिद ने कहा, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो मुझसे मत पूछो
तुम माइक अपने बाप से पूछ लो। मेरा बाप? माइक ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ, तुम्हारा बाप। मेरे बाप ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे और तुम्हारे बाप का अकाउंट एक ही बैंक में है और बैंक का मैनेजर तुम्हारे बाप की सलाहियतों का बेहद मुतारफ है। इसने कई दफा मुझे कहा कि पैसे कमाने के मामले में तुम्हारे बाप का सानी नहीं। मेरा बाप? माइक ने दोबारा बेयकीनी से पूछा। तो फिर क्या वजह है कि वो दूसरे अमीर बच्चों की तरह ना तो हमारे पास अच्छी गाड़ी है और ना मकान। अच्छी गाड़ी रखने और अच्छे मकान में रहने से कोई अमीर नहीं बन जाता, ना ही इसका ये मतलब है कि वो पैसा कमाने का ढंग जानता है। मेरे बाप ने जवाब दिया। जिमी का बाप गन्ने की कंपनी में काम करता है। वो मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। वो एक फर्म में काम करता है। मैं हुकूमत का मुलाजिम हूँ। ये कार ऐसी इससे कंपनी ने खरीद कर दी है। आजकल गन्ने की जिस फर्म में वो मुलाजिम है माली मुश्किलात से दो चार है और हो सकता है जल्द ही इसकी मुलाजमत खत्म हो जाए। तुम्हारा बाप मुख्तलिफ है माइक। वो एक मालियाती सुल्तनत बनाने में लगा हुआ है और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो जल्द ही वो एक बहुत दौलतमंद शख्स बन जाएगा। इस पर मैं और माइक एक बार फिर पुरजोश हो गए और अपनी पहली कारोबारी काविश को कूड़ा क्रिकेट को ज्यादा तंदही से साफ करने लगे। इस दौरान हम बातचीत करते रहे कि कब और कहाँ माइक के डेढ़ से मिला जाए। मुसीबत ये थी कि माइक का बाप काम में इस कदर मसरूफ रहता कि वो देर गए रात घर आता। इसके बाप का एक जनरल स्टोर था, एक बिल्डिंग कंपनी थी, बहुत से स्टोर थे और वो 3 रेस्टोरानों का मालिक था और इन रेस्टोरानों की बदौलत से घर आने में देर हो जाती। सफाई के बाद माइक बस पकड़कर घर रवाना हुआ। सफाई के बाद माइक बस पकड़कर घर रवाना हुआ। इस रात इसने तहैया कर लिया था कि जब इसका बाप घर लौटेगा तो वो उससे इस सिलसिले में बात करेगा और इससे अमीर बनने का तरीका मालूम करने की कोशिश करेगा। माइक ने मुझसे वादा किया कि जो ही वो अपने बाप डैड से बात करेगा तो फोन पर मुझसे राब्ता करेगा। रात 8:30 बजे फोन की घंटी बजी। बिल्कुल ठीक मैंने कहा, अगले हफ्ते और मैंने फोन रख दिया। माइक के वालिद ने हम दोनों से मुलाकात की हामी भर ली थी। हफ्ते को सुबह 7:30 बजे मैं गरीब इलाके की तरफ जाने के लिए बस में सवार हुआ। सबक शुरू होते हैं। मैंने तुम्हें 10 सेंट घंटा के हिसाब से अदा करूंगा। 1956 में भी 10 सेंट घंटा के हिसाब से मजदूरी निहायत कम थी। माइक और मैं माइक के बाप से 8 बजे सुबह मिले। वो इस वक्त बहुत मसरूफ था और 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त काम कर चुका था। इसका तामीरात का निगरां पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना होने को था जब मैं इसके छोटे से साफ सुथरे और आरास्ता दफ्तर में दाखिल हुआ। माइक पहले से वहां मौजूद था। इसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैड किसी से फोन पर बात कर रहा है। इसने मुझे और तुझे पिछली पोर्च में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने इस कदीमी दफ्तर के चौबी फर्श पर कदम रखा तो लकड़ियां चीखी। दरवाजे के अंदर की जानब फर्श पर एक पुराना कालीन पड़ा था। इसे गालिबन इन सदा कदमों की निशानों की पर्दापोशी के लिए रखा गया था। ये साफ जरूर था मगर इसे बदलने की जरूरत थी। इस छोटे से कमरे में दाखिल होकर मुझे डर महसूस हुआ। इसमें बदबूदार कोहना फर्नीचर के पास रची हुई थी जिसका ताल्लुक आसार कदीमा से था। औरतों के करीब एक आदमी बैठा था जिसने मजदूरों को के कपड़े पहन रखे थे जो खाकी पतलून और खाकी कमीज पर मुश्तमिल थे। ये कपड़े माया के बगैर थे मगर इन पर अच्छी तरह इस्त्री की गई थी। इसके सामने चमकदार जिल्दों वाली किताबें रखी थी। वो मेरे बाप से तकरीबन 10 बरस बड़ा लगता था, यानी उसकी उम्र 45 के करीब थी। जब हम इन लोगों के करीब से गुजरे तो वो हमें देखकर मुस्कुराए
बावर्ची खाने में से गुजरते हुए हम पिछले बरामदे में पहुंच गए, जिसके सामने इस जगह का सहन था। मैं भी छेप कर मुस्कुरा दिया। ये कौन लोग हैं? मैंने पूछा। ये मेरे बाप के लिए काम करते हैं। उम्र रसीदा आदमी जो अभी तुमने देखा है, वो मेरे बाप के जनरल स्टोरों का इंचार्ज है। वो ख्वातीन रेस्टोरानों की मैनेजर हैं। और तुमने भी इस सुपरवाइजर को देखा है जो यहाँ से 50 मील के फासले पर सड़क तामीर करवा रहा है। दूसरा सुपरवाइजर जो एक एकांती मंसूबा में सड़क बनवा रहा है, हमारे आने से पहले जा चुका है। क्या यहाँ हर वक्त ये सिलसिला चलता है? मैंने पूछा। हर वक्त नहीं, मगर बेशतर औकात। माइक ने मुस्कुराते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया और कुर्सी खींच कर मेरे नजदीक बैठ गया। मैंने अपने डैड से पूछा कि क्या वो हमें रुपया कमाने का तरीका बतलाएगा। माइक ने कहा तो उसने जवाब दिया। मैंने पूछा। पहले तो वो अजीब तमस्खराना लहजे में मुस्कुराया और फिर कहने लगा कि वो हमें एक पेशकश करेगा। अच्छा? मैं अपनी कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए बोला और माइक भी कुर्सी से यही सलूक कर रहा था। क्या तुम्हें पेशकश के बारे में इल्म है? मैंने कहा। नहीं, मगर जल्द ही हमें पता चल जाएगा। अचानक माइक का डैड अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों उछल कर खड़े हो गए। ये उसकी इज्जत अफजाई के लिए ना था, मगर इसका आना गैर मुतवक्के था, जिससे हम किसी कदर बदहवास हो गए। क्या तुम दोनों तैयार हो? माइक के बाप ने पूछा और इस दौरान एक कुर्सी घसीट कर हमारे सामने बैठ गया। हमने सर को असबात में जंबश दी। अंदर से मैं घबराया हुआ था। इसकी मुस्कुराहट और अल्फाज के पीछे पुरएहतमादी और कुव्वत का उनसर नुमाया था। वो लंबा चौड़ा आदमी था। इसका वजन 200 पाउंड से कम न था। मेरा डैड कद में इससे लंबा था, वजन इसके बराबर ही था और माइक के डैड से 5 साल बड़ा था। दोनों यकसां दिखाई देते, गो इनके औसाफ यकसां न थे। हो सकता है दोनों ही ताकत से भरपूर थे। माइक का कहना है कि तुम पैसा बनाने का हुनर जानने के शायक हो। क्या ये बात सच है, रॉबर्ट? हाँ, ये सच है। ओके, मेरी पेशकश ये है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मगर ये पढ़ाई स्कूल की रवायती तालीम से हटकर होगी। तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। काम के दौरान तुम जल्दी सीख जाओ, बरक्स इसके कि तुम बैठे सुनते रहो और मैं बकवास करता रहूं, जैसे स्कूलों में हो रहा है। यही मेरी पेशकश है, इसे कबूल करो या रद्द करो। मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। नहीं, कोई सवाल नहीं। अभी और इसी वक्त इसे अपना लो। मैं मसरूफ आदमी हूँ, मेरा एक एक लम्हा कीमती है। मैं फजूल मुबाहिसे में वक्त जाया नहीं कर सकता। वैसे भी अगर तुम में फैसला करने का फुकदान है तो तुम पैसा नहीं कमा सकते। मौके आते जाते रहते हैं। वक्त पर जल्द फैसला करने की अहलियत एक अहम हथियार है। तुम मौका की तलाश में थे, मैंने तुम्हें मुहैया कर दिया। या तो ये स्कूल 10 सेकंड में शुरू होता है या खत्म हो जाता है। माइक के बाप ने चुभती हुई मुस्कुराहट से कहा। मैं इसे कबूल करता हूँ। मुझे भी कबूल है, माइक ने कहा। बहुत अच्छा, माइक के डैड ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन यहाँ पहुंचने वाली है। जब मैं इससे बात कर लूं तो तुम दोनों इसके साथ चल देना। तुम स्टोर में काम करोगे और तुम्हें 10 सेंट घंटा के हिसाब से मजदूरी मिलेगी और तुम हफ्ता को 3 घंटे काम किया करोगे। मगर आज तो मेरी सॉफ्ट बॉल की गेम है, मैंने कहा। माइक के डैड ने एकदम संजीदा होकर कहा, या कबूल कर लो या इनकार कर दो। मैं इसे कबूल करता हूँ और सॉफ्ट बॉल पर पैसे कमाने और काम करने को तरजीह दी। 30 सेंट बाद एक निहायत सुहानी हफ्ता की सुबह 9 बजे हमने मिसेस मार्टिन के लिए काम शुरू कर दिया। वो एक मेहरबान और नेक दिल खातून थी। वो हमें देखकर हमेशा कहती कि इसे अपने 2 बेटे याद आ जाते हैं जो बड़े होकर इसे छोड़ गए थे। बेशक वो नरम दिल थी, मगर मेहनत पर इसे यकीन था और वो हमसे खासी मशक्कत करवाती। इसे काम लेना आता था। 3 घंटे मुसलसल हमने खुराक के बंद डब्बे एक एक करके शेल्फ से उठाए और इसकी एक झाड़न से झाड़ू पूंछकर और
بعد में इन्हें वापस उसी जगह खूबसूरती से तरबियत दी। ये एक सब्र आजमा काम था। माइक का बाप, जिसे मैं अपना अमीर बाप कहकर पुकारता हूँ, इसके एक ऐसे नो फूड स्टोर थे जिससे मुल्हिका बड़ी बड़ी कार पार्क्स थी। वो 7-11 7 से 11 स्टोर की इब्तदाई तर्ज पर बनाए गए थे। यहाँ इर्द गिर्द के लोग सिर्फ जरूरत की अशिया यानी दूध, डबल रोटी, मक्खन और सिगरेट वगैरह खरीदते। मुसीबत ये थी कि ये स्टोर जज़ायर हवाई में थे और इस वक्त तक एयर कंडीशंस इजाद ना हुए थे और गर्मी की वजह से इन स्टोरों को अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते। स्टोर के दोनों जानिब दरवाजे खुले रहने पड़ते थे, क्योंकि एक दरवाजे से गाहक अंदर दाखिल होते और दूसरे से पार्किंग शेड में चले जाते। हर दफा जब कोई कार आकर पार्किंग शेड में खड़ी होती तो मिट्टी और गर्द गुबार का एक बादल उठता और स्टोर के अंदर रखी हुई अशिया पर धूल की तह जमती थी। चुनांचे हमें ये काम इस वक्त तक करना था जब तक एयर कंडीशन दस्तयाब ना हो जाते। 3 हफ्तों तक बाकायदगी से हम मिसेस मार्टन के पास हाजिरी देते रहते और 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता और वो हमारी हथेलियों पर 10-10 सेंट के सिक्के थमा देती। हकीकत तो ये है कि 1950 के वस्त में भी 30 सेंट कोई बड़ी रकम ना थी। इन दिनों का कॉमिक बॉक्स की कीमत 10 सेंट थी। चुनांचे में अपने पैसों से चंद कॉमिक बुक्स खरीदता और घर चला जाता। चौथे हफ्ते के बुध तक मैं काम छोड़ने पर तैयार था। मैं सिर्फ इसलिए इस काम पर राजी हुआ था कि मैं माइक के डैड से पैसा कमाने के तरीका सीखना चाहता था और हालत ये थी कि 10 सेंट घंटा का गुलाम बनकर रह गया था और उस पर तुरा ये कि आज तक उस जात शरीफ के शक्ल तक नजर न आई थी। दोपहर के खाने पर मैंने माइक से कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। स्कूल का खाना भी खराब था, यहाँ की पढ़ाई से मुझे दिलचस्पी ना रही थी और हफ्ता को सॉफ्ट बॉल खेलकर मैं जो थोड़ी बहुत तफरी कर लेता था वो भी खत्म हो चुकी थी। मुझे सिर्फ 30 सेंट पहुंचते हैं। इस दफा माइक मुस्कुराया। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? मैंने गुस्से और मायूसी से पूछा। डैड ने कहा था कि ऐसा होगा। वो इस इंतजार में था कि तुम कब हार मानते हो और अब तुम्हें उनसे मिलना है। क्या? मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे तंग आने का मुंतजिर थे? ऐसा ही समझो, माइक ने कहा। मेरा डैड जरा मुख्तलिफ है। वो जिस तरह पढ़ाता है इसका तरीका अलग है। तुम्हारे माँ बाप पंदो नसाहिब बहुत करते हैं। मेरा बाप खामोश तबा है और थोड़ी बात करता है। हफ्ते तक तुम इंतजार करो और फिर मैं इसे बतला दूंगा कि अब तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ जानबूझ कर किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इरादतन किया गया। हफ्ते को मेरे बाप इस बारे में बात करेगा। हफ्ते के रोज कतार में बैठकर मुलाकात के लिए इंतजार। मैं इसका सामना करने और इससे मिलने के लिए तैयार था। मेरा हकीकी बाप भी इससे नाराज था। इसका ख्याल था कि माइक के वालिद ने चाइल्ड लेबर कानून की खिलाफ वर्जी की थी और इसके लिए इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब बाप ने मुझे कहा कि जायज का मुतालबा करो, कम अज कम 25 सेंट तो मुझे मिलने चाहिए। इसने कहा अगर मेरा 25 सेंट का मुतालबा पूरा नहीं होता फौरी तौर पर मुझे ये काम बंद कर देना चाहिए। वैसे भी तुम्हें इस बेहुदा नौकरी की जरूरत नहीं, मेरे बाप ने मुझे मशवरा दिया। हफ्ते की सुबह 8 बजे मैं दोबारा माइक के घर के दरवाजे में दाखिल हुआ। बैठ जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो, माइक के डैड ने मुझे हिदायत दी। जब मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, वो मुड़ा और सोने के कमरे में मल्लिका एक छोटे से दफ्तर में घुसकर नजरों से ओझल हो गया। मैंने इधर उधर सरसरी निगाह दौड़ाई, माइक कहीं नजर न आया। बौखला कर मैंने इन दो औरतों के जल्द में बैठ गया जो पिछली दफा भी यहाँ मौजूद थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और खिसक कर मेरे बैठने की जगह बनाई।
45 मिनट गुजर गए। गुस्से से मेरी बुरी हालत थी। दोनों औरतें इससे मिलकर 8 घंटे पहले रुखसत हो चुकी थी। एक उधेड़ उम्र शख्स 20 मिनट से यहाँ बैठा था, वो भी इससे मिलकर चला गया। बाहर दिन खुशगवार था। मैं इससे घटे हुए पोशीदा कमरे में बैठा इससे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैं ऐसे शख्स से मिलने वाला था जो ताजर पेशा था और बच्चों से मजदूरी करवाता था। दफ्तर में इसके हिलने जुलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो फोन पर बातचीत कर रहा था, मगर अभी तक इसने मुझसे मिलना गवारा ना किया था। दिल चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से निकल जाऊं, मगर फिर भी रुका रहा। आखिरकार 15 मिनट बाद पूरे 9 बजे इसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मुंह से कुछ न बोला, हाथ के इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मैंने सुना है कि अगर तुम्हारे पैसों में इजाफा ना किया गया तो तुम ये काम बंद कर दोगे। अमीर बाप ने अपनी रिवॉल्विंग कुर्सी को घुमाते हुए मुझसे पूछा। शायद हाँ, क्योंकि तुमने अपने वादे का पास नहीं किया। मैंने तकरीबन रोते हुए कहा। एक 9 साल बच्चे के लिए एक उम्र रसीदा शख्स का सामना करना खासा डरावना था। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो तुम मेरी तरबियत करोगे। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, मेहनत से काम किया है। मैं सॉफ्ट बॉल का खेल तर्क करके काम में मशगूल रहा, मगर अभी तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं बतलाया। तुम्हारे बारे में लोगों का ख्याल सही है। तुम वाकई एक गलत आदमी हो। तुम लालची हो। तुम सारा पैसा खुद कमाना चाहते हो और तुम्हें अपने मुलाजमीन का कुछ ख्याल नहीं। तुम मुझसे इंतजार करवाते हो और मुझे थोड़ी सी इज्जत देने के भी रवादार नहीं। मैं छोटा सा लड़का हूँ और बेहतर सलूक का मुस्तहिक हूँ। अमीर बाप ने कुर्सी पीछे की तरफ झुकाई और हाथ थोड़ी के नीचे रख दी और मुझे गौर से देख रहा था। इससे ऐसे लगता था जैसे वो मेरा मुतालिया कर रहा हो। बुरा नहीं, इसने कहा। 1 महीने के अंदर ही तुम मेरे दूसरे मुलाजमों की जुबान बोलने लगे हो। क्या? मैंने पूछा। मुझे अंदाजा ना हुआ कि वो क्या कह रहा था और शकरंजी में बोलता गया। मेरा ख्याल था कि तुम मुआहदे का पास करोगे और मुझे सिखाओगे। इसके बजाय तुम मुझे अजियत दे रहे हो। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अमीर बाप ने इत्मीनान से कहा। तुमने मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने गुस्से से कहा। जब से मैंने तुम्हारे स्टोर में काम शुरू किया, एक दफा भी तुमने मेरे से बात तक नहीं की। 10 सेंट फी घंटा, क्या बात है। मैं हुकूमत को इसके बारे में बतलाऊंगा। हमारे यहाँ बच्चों की मजदूरी के बारे में कवानीन हैं। तुम्हें भी ये मालूम है कि के होगी कि तुम्हें भी ये बात मालूम होगी और मेरा बाप हुकूमत का मुलाजिम है। अमीर बाप कहने लगा, तुम बिल्कुल इन लोगों के लहजे में बात कर रहे हो जो तुमसे पहले मुझसे काम मांगते हैं। वो लोग यानी अमीर बाप कहने लगा, अब तुम बिल्कुल उन लोगों के लहजे में बात कर रहे हो जो तुमसे पहले मुझसे काम मांगने आते। वो लोग जिन्हें या तो मैंने निकाल दिया या खुद ही वो भाग गई। तो फिर अब तुम्हें क्या कहना है? मैंने बहादुरी से इससे सवाल किया। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारे लिए काम किया और तुमने वादा का पास ना किया। तुमने मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया। तुम्हें कैसे मालूम है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया? अमीर बाप ने पुरसुकून लहजे में सवाल किया। तुमने मुझसे बात तक नहीं की। 3 हफ्ते में मैंने काम किया और तुमने इस दौरान मुझे कोई तालीम नहीं दी। मैं मुंह बसोर कर कहा, क्या पढ़ाई से तुम्हारी मुराद बातचीत करना या लेक्चर देना है? अमीर बाप ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल में तुम्हें इस तरह पढ़ाया जाता है? मेरे बाप ने मुस्कुराते हुए पूछा। मगर जिंदगी इस तरह नहीं सिखाती और मेरे ख्याल में जिंदगी बेहतरीन उस्ताद है। ज्यादातर ये तुमसे बातचीत नहीं करती, बस ये तुम्हें इधर उधर धकेलती है और हर धक्के के साथ जिंदगी कहती है, जागो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये शख्स ये क्या कह रहा है? मैंने खामोशी से खुद से सवाल किया। मुझे धक्के देकर जिंदगी मुझसे गुफ्तगू कर रही है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मुलाजमत छोड़नी होगी। मैं किसी पागल शख्स से बात कर रहा हूँ।
अगर तुम जिंदगी से सबक सीखोगे तो बेहतर होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हें इधर उधर धकेलती रहेगी। लोग दो काम करते हैं, कुछ तो जिंदगी को खुला छोड़ देते हैं कि वो इन्हें यहाँ वहाँ लड़खड़ाती रहे, और कुछ गुस्से में आकर इसे जवाबी धक्का देते हैं, लेकिन वो अपने आजर मुलाजमत खाविंद या बीवी को पीछे धकेलते हैं। इन्हें एहसास नहीं होता कि धक्के तो इन्हें जिंदगी मार रही थी। मुझे इस बकवास की कुछ कुछ समझ न आ रही थी। हम सबको जिंदगी धकेलती है, कुछ हार मान लेते हैं, कुछ मुकाबला करते हैं, कुछ सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी इनसे ये सलूक करे। ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ हासिल करने और सीखने की ख्वाहिश होती है। वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हथियार डाल देते हैं और कुछ तुम्हारी तरह आगे से मुकाबला करते हैं। अमीर बाप ने खड़े होकर पुरानी खिड़की बंद की, जिसे मरम्मत की अशद जरूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लो तो जल्द ही एक अक्लमंद, दौलतमंद और खुशहाल नौजवान बन जाओगे, वगरना बकाया जिंदगी अपनी नौकरी और थोड़ी तनख्वाह के लिए अपने मालिक को कोसते हुए गुजार दोगे। तमाम जिंदगी तुम इस अजीम मौका की राह देखते रहोगे जो तुम्हारे तमाम माली मसाइल हल कर देगा। अमीर बाप ने मेरी तरफ देखा कि आया मैं इसकी बात सुन रहा हूँ। इसकी आंखें मुझसे मिली, घूर कर हमने एक दूसरे को देखा और आंखों में बहुत से पैगामात का तबादला हो गया। इसके आखिरी पैगाम को समझकर मैंने अपनी आंखें नीचे कर लीं। मुझे पता चल गया कि वो ठीक कह रहा था। मैं इस पर इल्जाम लगा रहा था, जबकि खुद ही मैं इसके पास आया था, मैं लड़ रहा था। अमीर बाप कहता है, या फिर तुम ऐसे आदमी हो जो थर्ड ले हो और जरा भी मुश्किल आए तो हौसला हार देते हो। इस सूरत में तुम तमाम जिंदगी महफूज पिच पर खेलते रहोगे, सही काम करोगे और अच्छे दिनों का इंतजार करते रहोगे जो कभी नहीं आएंगी, और एक बेकार बुढ़े बनकर इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे जो महज इसलिए तुम्हें पसंद करेंगे कि तुम एक अच्छे मेहनती इंसान थे, मगर सच तो ये है कि जिंदगी ने धक्के देकर तुम्हें अपने सामने झुका लिया। दर हकीकत तुम खतरे मोल लेने से डरते हो। तुम जीतना चाहते थे, मगर हार का खतरा जीतने की खुशी से ज्यादा था। तुम सिर्फ जानते हो कि तुमने कोशिश ना की, तुमने हमेशा महफूज रहकर खेल खेला। हमारी आंखें दोबारा मिली। 10 सेकंड हमने एक दूसरे को देखा, और जब पैगाम मौसूल हो गया तो मैंने आंखें दूसरी तरफ फेर ली। तुम मुझे धकेलते रहे हो, मैंने पूछा। कुछ लोगों का शायद यही ख्याल हो। वो मुस्कुराया। मैंने जिंदगी से महज तुम्हारी तारफ करवा रहा था। कैसा तारफ? मैंने पूछा। मैं अभी भी नाराज था, मगर आहिस्ता आहिस्ता तजस्सुस का एहसास मुझ पर गालिब आ रहा था। तुम दोनों पहले लड़के हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने के बारे में पूछा है। मेरे 150 मुलाजिम हैं, मगर इनमें से एक ने भी मुझसे आज तक पैसा कमाने के ढंग के बारे में नहीं पूछा। वो मुझसे तनख्वाह लेते हैं, इजाफा की बात करते हैं और बस। चुनांचे इनकी अक्सरियत पैसे के लिए काम करने में गुजर जाएगी। इन्हें ये भी मालूम ना होगा कि दर हकीकत किसी शे को हासिल करने में कोशां रहे हैं। मैं वहां बैठा गौर से इसकी बातें सुनता रहा। चुनांचे जब माइक ने मुझे बतलाया कि तुम पैसा कमाने के बारे में सीखना चाहते हो, तो मैंने एक रास्ता चुना जो जिंदगी से करीब तर था। मैं बेशक कितना भी बोलता, हत्ता कि मेरी रगें फूल जाती, मगर तुम्हारे पले कुछ भी ना ही पड़ना था। चनांचे मैंने कोशिश की कि जिंदगी तुम्हें छोटा मोटा धकेले ताकि तुम मेरी बात सुनने के काबिल हो जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें 10 सेंट फी घंटा देता रहा। तो 10 सेंट फी घंटा के हिसाब से काम करके तुमने क्या सबक हासिल किया? अमीर बाप ने पूछा। ये कि तुम बहुत हल्के आदमी हो और अपने मुलाजमों को ब्लैकमेल करते हो। अमीर बाप ने कुर्सी आगे पीछे झिलाई और जोर से हंसा।
جب یہ ہنسی رکی تو اس نے کہا تمہیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہیے، مجھ پر الزام تراشی بند کرو، اس سوچ سے نجات حاصل کرو کہ میں تمہاری مشکل کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو پھر مجھے بدلو، اور اگر خود تم پر یہ الزام آتا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، کچھ سیکھو اور عقل میں اضافہ کرو۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تمام دنیا کو ماسوائے اپنے بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میری بات سنو، دنیا کی نسبت خود کو بدلنا آسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، اپنے مسائل کے لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میرے امیر باپ نے مجھے بے صبری سے کہا، لیکن تم مجھے صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ ادا کرو گے، پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ میرے امیر باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ تم بے وقت ہو؟ میں نے چالاکی سے جواب دیا، تو تمہارے خیال میں قصور میرا ہے؟ امیر باپ نے کہا، بالکل، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم کبھی بھی کچھ نہ سیکھو گے۔ اگر تم یہی سمجھتے رہے کہ پرابلم میں ہوں تو تمہارے پاس دوسرے متبادل کیا ہیں؟ اگر تم نے میرے پیسے نہ بڑھائے، مجھے زیادہ عزت نہ دی اور مجھے نہ پڑھایا تو میں اس نوکری سے الگ ہو جاؤں گا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، امیر باپ نے کہا، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ چھوڑ کر دوسری نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ہوں اور بہتر مواقع ہوں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ انہیں 10 سینٹ پر گزارا کر کے خوش رہوں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ مسکرایا، اور لوگ ایسے ہی کریں گے، تنخواہ کا چیک وصول کریں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنے پیسوں میں ان کا گزارا نہیں، پھر بھی وہ یہی کریں گے اور اس موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ جب ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیادہ تر ایک نوکری پر قائم رہیں گے، مگر چند ایک دوسری نوکری ڈھونڈ لیں گے، زیادہ محنت کریں گے، مگر تنخواہ کا چیک پھر بھی حسب منشا نہ ہوگا۔ میں وہاں بیٹھا فرش کو تکتا رہا اور اس سبق سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا جو امیر باپ نے مجھے سکھایا تھا۔ میرے خیال میں اس کا مطلب زندگی سے نبرد آزما تھا۔ آخر کار میں نے سر اٹھایا اور اپنا سوال دہرایا، تو پھر پرابلم کیسے حل ہوگا؟ اس نے کہا اور انگلی سے میرے دماغ کو ٹھوکا دیا، یہ جو تمہارے 2 کانوں کے درمیان ہے مسئلہ حل کرے گا۔ یہی وقت تھا جب میرے امیر باپ نے اس حقیقت کو پا لیا جو اسے میرے غریب باپ اور اپنے ملازمین سے ممتاز کرتی تھی، اور اس کی بدولت جلد ہی ہوائی کے امیر ترین آدمیوں میں سے اس کا شمار ہونے لگا، جبکہ میرا غریب باپ جو بے تحاشا پڑھا لکھا تھا زندگی بھر تنگ دستی کا شکار رہا۔ یہ ایک منفرد اور انوکھا نقطہ نظر تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ امیر باپ نے بار بار اپنا نقطہ نظر بیان کیا، جسے میں اپنا سبق نمبر 1 کہتا ہوں۔ غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیر پیسے سے کام لیتے ہیں۔ ہفتے کی دن اس روشن صبح کو میں ایک انوکھا نقطہ نظر سیکھ رہا تھا، اور جو کچھ میرے غریب باپ نے مجھے سکھلایا تھا یہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا کہ دونوں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، دونوں نے مجھے مطالعہ کی طرف مائل کیا، مگر دونوں کی سوچ میں بے حد تضاد تھا۔ میرا پڑھا لکھا باپ کہتا کہ میں وہی کروں جو اس نے کیا، بیٹے میں چاہتا ہوں تم محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے اور کوئی بڑی فرم تمہیں پرکشش براحات پر ملازم رکھے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے کام لے سکوں، اور یہ سبق وہ تھے جو تمام زندگی میں اس کی رہنمائی میں سیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے کسی کلاس روم کی ضرورت نہ تھی۔ میرے امیر باپ نے میرا پہلا سبق جاری رکھا، میں خوش ہوں کہ 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری سے تمہیں برگشتہ کیا۔
अगर तुम नाराज होने के बजाय इसे बखुशी कबूल करते तो मैं तुम्हें कभी का फारिग कर चुका होता। जानकारी के लिए जोर लगाना पड़ता है, गुस्सा भी आता है, जज्बात भी ओदम मचता है, और उसके लिए अटूट ख्वाहिश जरूरी है। गुस्सा इसका अहम हिस्सा है। जब गुस्सा और प्यार मिलते हैं तो जज्बात की शुरुआत होती है, और जब मामला पैसे कमाने की का हो तो आमतौर पर लोग ठंडे दिल से सोचते और एहतियात से कदम उठाते हैं। ये लोग जज्बात से आरी होते हैं, जज्बात इनकी रहनुमाई नहीं करते, खौफ इन्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए शायद वो थोड़े पैसों पर काम करने पर राजी हो जाते हैं। मैंने पूछा, बिल्कुल, मेरे अमीर बाप ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने मुलाजमों को ब्लैकमेल करके इन्हें हुकूमत और शुगर प्लांट मिशन के मुकाबले में कम तनख्वाह पर नौकर रख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये खुद ब्लैकमेल होते हैं, ये इनका खौफ होता है, मेरा नहीं। लेकिन क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता नहीं लेकिन क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता कि तुम्हें इन लोगों को तनख्वाह ज्यादा देनी चाहिए? मैंने पूछा। नहीं। और क्या ज्यादा पैसे से और क्या ज्यादा पैसों से इनके मसाइल हल हो जाएंगे? अपने बाप को देखो, वो खासी कमाई करता है और अब भी वाजिबात देते हुए इससे तंगी होती है। आमतौर पर लोगों की आमदनी में जब इजाफा होता है तो इसी हिसाब से इनका कर्ज भी बढ़ता है। तो इसीलिए तुम मुझे 10 सेंट फी घंटा दे रहे हो, ये इस सबक का हिस्सा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप ने बेहतरीन अदारों में तालीम हासिल की ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सके, और इसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद इसे माली मसाइल का सामना है, क्योंकि किसी स्कूल ने इस इस बारे में इसे कुछ भी ना बतलाया। सबसे बढ़कर ये कि वो पैसे के लिए काम करता है और तुम नहीं। मैंने पूछा, नहीं, गालिबन नहीं, अमीर बाप ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने के बारे में सीखना चाहते हो तो स्कूल जाओ, वहां इसके मुताल्लिक तुम्हें अच्छी तालीम दी जाएगी। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि पैसे को किस तरह अपने इख्तियार में करके इससे काम लिया जाता है तो इसकी तालीम मैं तुम्हें दूंगा। मगर इस सूरत में अगर तुम इसके लिए हाजिर हो, क्या हर एक ये तालीम हासिल करनी चाहिए हर एक को ये तालीम हासिल करनी चाहिए? मैंने पूछा। अभी इसकी फिक्र छोड़ो, बस ये जान लो कि ये खौफ ही है जो देर तक लोगों को एक ही नौकरी करने पर मजबूर करता है, और ये खौफ होता है कि वाजिबात ना देने की वजह से इसे तंगी का सामना होता है। इसे डर होता है कि इसे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। इसे इस बात का डर होता है कि कैसे पैसे कम ना पड़ जाएं। वो नए सिरे से दूसरों इब्तिदा करने से घबराते हैं। ये कीमत है जो एक पेशा या एक तिजारत को सीखने के बाद पैसों के लिए काम करने की सूरत में इंसान को अदा करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस से गुस्सा करते हैं। पैसा को अपने कंट्रोल में करने के बाद इसे अपने काम में लाने का तस्वर आम तालीम से कदरे मुख्तलिफ है। मैंने पूछा, कामला? अमीर बाप ने कहा, यकीनन। हवाई के हफ्ते की इस हसीन सुबह का हम खामोशी से बैठे 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 रहे। मेरे दूसरे दोस्त सॉफ्ट बॉल का खेल शुरू करने वाले होंगे, लेकिन गैर मरी तौर पर मैं अपने इस 10 सेंट फी घंटा की नौकरी पर जोश पर खुश था। मैं जानता था बहुत जल्द मैं एक ऐसी बात को सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में पढ़ाई के दौरान कभी भी जान ना पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? मेरे अमीर बाप ने पूछा। बिल्कुल, मैंने हंस कर जवाब दिया। मैंने अपने वादे का पास किया और तुम्हें दूर से पढ़ाता रहा हूँ। 9 साल की उम्र में ही तुम्हें अंदाजा हो गया कि पैसे के लिए काम करने का एहसास क्या है। अपने इस महीने को अगर तुम 50 सालों से सिर्फ दे दो तो तुम्हें बखूबी मालूम हो जाएगा कि लोग उम्र भर क्या करते हैं। मैं नहीं जानता मैंने क्या किया। जब कतार में बैठकर तुम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसे लगा? एक दफा तुम मेरे पास नौकरी के लिए आए, दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। बहुत बुरा लगा, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहोगे तो जिंदगी भर इसी तरह इंतजार करोगे, अमीर बाप ने कहा।
और तुम्हें कैसे लगा जब 3 घंटे काम करने के बाद मिसेस मार्टिन ने 3 सिक्के तुम्हारी हथेली में रखे? मैंने तो महसूस किया कि ये मुआवजा काफी ना था, ये कुछ भी ना था। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैंने कहा, और ज्यादातर मुलाजमत जब अपनी तनख्वाह के चेक पर नजर डालते हैं तो इनका ही भी यही हाल होता है, खास तौर पर जब उसमें से इनकम टैक्स और दूसरे वाजिबात की वसूली हो चुकी होती है। तुम्हें कम अज कम 100% तो मिला है। तुम्हारा ये कहना कि ज्यादातर मजदूरों को सारी मजदूरी नहीं मिलती, मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं, अमीर बाप ने कहा, हुकूमत पहले अपना हिस्सा काटती है। वो ये कैसे करते हैं? मैंने पूछा। टैक्स टैक्स देना होता है, मेरे अमीर बाप ने कहा। जब तुम कमाते हो तो कमाई पर टैक्स अदा करते हो, जब तुम खर्च करते हो तो दोबारा टैक्स अदा करते हो, जब तुम बचत करते हो तो इस पर भी टैक्स अदा करते हो, जब तुम मरते हो तो टैक्स अदा करते हो। लोग हुकूमत को ऐसा करने की इजाजत क्यों देते हैं? अमीर लोग इजाजत नहीं देते। अमीर बाप मुस्कुरा कर बोला, टैक्स सिर्फ गरीब लोग और दरमियाना तबका अदा करता है। मैं तुमसे शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगरचे मेरी कमाई तुम्हारे डैड की कमाई के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, फिर भी वो मेरे से ज्यादा टैक्स अदा करता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। 9 साल की उम्र में मुझे ये तजाद बहुत अजीब लगा। लोग हुकूमत को ये ज्यादती करने से रोकते क्यों नहीं? अमीर बाप खामोशी से बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो ये चाहता था कि मैं बोलूं कम, सुनूं ज्यादा। आखिरकार जब मैं पुरसकून हुआ, फिर भी मैंने इस बेइंसाफी पर तप रहा था। मैं जानता था कि मेरा बाप हमेशा भारी टैक्स का रोना रोता रहता है, मगर सिवाय इसके और उसने कुछ ना किया। क्या जिंदगी इसे धकेल रही थी? अमीर बाप कुर्सी को होले होले हलकोरे देते हुए खामोशी से मुझे देखता रहा। क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? इसने पूछा। मैंने सर को इस्बात में हिलाया, जैसा कि मैंने कहा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। पैसे को मुसर्रफ में लाने के लिए जिंदगी भर सीखना पड़ता है। आम लोग 4 साल कॉलेज में गुजारते हैं और इनकी तालीम खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये जानकारी तमाम जिंदगी जारी रहेगी, क्योंकि इस बारे में जो जो मेरी मालूमात में इजाफा हो रहा है, तो मुझे एहसास होता है कि अभी इस बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। आम लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं। वो पढ़ाई खत्म करते साथ ही नौकरी के कर लेते हैं, चेक बुक को मीजान कर लेते हैं और बस। इस पर भी वो माली मसाइल का रोना रोते हैं, और फिर इनकी ये सोच भी होती है कि तनख्वाह बढ़ने से इनके हालात बेहतर होंगे। बहुत लोगों को अंदाजा होता है कि इनके असल मसला माली तालीम की कामयाबी है। तो फिर मेरे डैडी को टैक्स मसाइल का सामना महज इसलिए है कि वो इस बारे में नहीं जानता? परेशानी के आलम में मैंने पूछा। मेरी बात सुनो, दौलतमंद डैडी ने कहा। दौलत को अपने ताबे फरमान करने के लिए के इल्म का टैक्स एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं सिर्फ ये जानने का ख्वाहिशमंद था कि इस इल्म को हासिल करने की तुम्हारी ख्वाहिश कहीं मान तो नहीं पड़ गई। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, स्कूलों में जाकर पेशा वराना तालीम हासिल करना चाहते हैं, फिर नौकरी कर लेते हैं, अच्छी तनख्वाह लेते हैं और मजा करते हैं। फिर अचानक एक दिन इन्हें एहसास होता है कि वो माली मसाइल से घिर गए हैं, और फिर अगर वो चाहें भी तो भी काम नहीं छोड़ सकते। ये इसका जबरान है। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करने के बारे में जानते हैं, बजाय इसके कि पैसा आपके लिए काम करे, तो फिर क्या अब भी तुम्हें ये इल्म हासिल करने का ज़ौक है? अमीर बाप ने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल ठीक है, अमीर बाप बोला। अब वापस काम पर जाओ, इस दफा तुम बगैर पैसों के काम करोगे। क्या? मैं हैरानगी से बोला। जो मैंने कहा तुमने सुन लिया। तुम इसी तरह हफ्ते को 3 घंटे काम करोगे और तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तुम पैसे के लिए काम ना करने के बारे में सीखने के ख्वाहिशमंद थे, चुनांचे इस दफा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। जो मैं सुन रहा था इस पर मेरे कानों को यकीन ना आ रहा था। मैं इस बारे में माइक से भी बात कर चुका हूँ। वो पहले ही बगैर मुआवजे के झाड़ बूंच और सफाई में मशगूल हो चुका है। बेहतर है कि तुम भी जल्दी वहां जाकर अपना काम शुरू कर दो। ये ठीक नहीं, मैं चिल्लाया। तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत तो देना होगा। खुद तुमने कहा कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम अभी ही नहीं सीखते तो फिर
तुम भी इन दो औरतों और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं मैं इन्हें नौकरी से बर्खास्त ना कर दूं, या फिर अपने बाप की तरह बन जाओगे जो ढेर सारे पैसे कमाने के बावजूद कर्ज तले दबा हुआ है और ख्याल करता है कि अगर इससे और पैसे मिल जाएं तो इसकी मुश्किलात रफा हो सकती है। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं पुराने मुआहदे के मुताबिक तुम्हें 10 सेंट फी घंटा की अदायगी शुरू कर दूंगा, या तुम वही कर सकते हो जो ज्यादातर लोग बड़े होकर करते हैं, यानी गिला गिला करो कि तनख्वाह ज्यादा नहीं, काम छोड़कर चले जाओ और कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लो। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। अमीर बाप ने मेरे सर को ठोंका दिया, इसे इस्तेमाल करो। अगर तुमने इस सही तरीके से इस्तेमाल ना किया तो ये मौका देने के लिए तुम जल्द ही मेरा शुक्रिया अदा करोगे और बहुत जल्द तुम एक दौलतमंद इंसान बन जाओगे। मैं वहां खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इस नामाकूल मुआहदे के मुताल्लिक क्या रवैया अख्तियार करना है। मैं तो तनख्वाह बढ़वाने आया था और मुझे ये कहा जा रहा है कि मुफ्त में काम करो। अमीर बाप ने दोबारा मेरे सर को थपका और कहा, इसे इस्तेमाल करो, जाओ और काम शुरू करो।